One way. एक ही मार्ग. Say one way. बोलो एक ही मार्ग. I want to respond from you. One way, Jesus. One way. Jesus. And if you are hungry, then it is Subway. Many have eaten Subway, right? आप लोगों ने सबवे का सैंडविच खाया होगा. Hallelujah. Okay. We remember Abraham going and rescuing Lot. हम देखते हैं कि अब्राहम जाकर लॉट को बचा कर लाता है. Lot and all his servants and all the substance that was taken captive. लॉट और उसके जितने भी सेवक थे, उसकी जितनी भी संपत्ति थी, वो सबको बंदी बनाकर लेकर गया था. Okay. And Abraham rescues Lot and brings him back. और अब्राहम उसको छुड़ाकर फिर से लेके आता है. Genesis chapter 14. Now verse 18 tells us, उत्पत्ति का 14 अध्याय और 18 वचन. the scripture says, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. और वचन कहता है कि मेल्कीसेडेक जो था वो सेलम का राजा था, उसने रोटी और दाखरस लाया. And he was the priest of the Most High God. और वो परमेश्वर का एक याजक था. You know, whenever a king comes to meet a person who is higher in authority, जब भी एक राजा किसी उससे ऊंचे अधिकारी को मिलने आता है, he is not going to get bread and wine. तो वो एक रोटी और दाखरस नहीं लाएगा. He is going to get gold and silver and some precious. वो सोना चांदी और कीमती वस्तुओं को लाएगा. Right. And here we are seeing he is a king. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो राजा है. Melchizedek is a king. He is a king of Salem. मेल्कीसेडेक सेलम का राजा है. The meaning of the word Salem comes from the word Jerusalem. और ये सेलम जो शब्द है ये हम जेरूशलेम में पाते हैं. Or you can call it as Shalom, which is peace. या उसको हम शालोम भी बोल सकते हैं, जो शांति जिसका मतलब है. He is the king of peace, the king of righteousness and king of peace. और वो शांति का और धार्मिकता का राजा है. Right? So Melchizedek is bringing forth what? He is bringing forth bread and wine. तो वो साथ में रोटी और दाखरस को लेकर आ रहा है. And if you look at the book of Hebrews chapter 7, और इब्रानियों के 7 में अगर हम देखते हैं, all right, Melchizedek has no beginning, no end. और ये जो राजा है मेल्कीसेडेक, इसका कोई शुरुआत और अंत नहीं बताया है. He's been made like unto us the son of God. और वो जो परमेश्वर का पुत्र है उसके जैसा उसको बनाया गया है. Right? Now the son of God does not mean God has a son. इसका परमेश्वर का पुत्र मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का एक पुत्र है. Son of God means God manifesting himself in the flesh. परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर स्वयं देह रूप धारण करते हैं. Right? Can you imagine, God revealing breaking of bread when Melchizedek is coming to meet Abraham? और आप सोच सकते हो कि देह रूप धारण करके मेल्कीसेडेक के रूप में वो अब्राहम से मिलने आ रहे हैं. And he's bringing bread and wine. और वो रोटी और दाखरस को लेकर आ रहे हैं. Showing forth the sufferings of Christ Jesus. और वो ये दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह को कितना दुख उठाना पड़ेगा. Which is greater than all the wealth of the world put together. जो इस सारी दुनिया की संपत्ति को जोड़कर उससे भी ज्यादा उसका मूल्य है. Can you imagine? God felt it necessary to send Melchizedek with bread and wine. आप देख सकते हो कि परमेश्वर को ये जरूरी समझा कि मेल्कीसेडेक को वो रोटी और दाखरस लेकर भेजे. He didn't bring anything, gold, silver, nothing. और उसने सोना चांदी कुछ नहीं लाया. Nothing he brought before him. और कुछ नहीं लाया वो. It says he brought bread and wine. और यहाँ पे लिखा है कि उसने रोटी और दाखरस को लाया. Can you imagine God revealing breaking of bread in the book of Genesis? आप सोच सकते हो कि प्रभु भोजन का जो शुरुआत है परमेश्वर उसको उत्पत्ति में दिखा रहा है. Hallelujah. Hallelujah. Isn't the Lord wonderful? The Lord emphasizes, magnifies the work of the cross than anything else in this world. और परमेश्वर जो क्रूज पर किया गया काम है उसको किसी भी और चीज से ज्यादा ऊंचा उठाता है. When the Lord said that, do this in remembrance of me. और जब यीशु कहते हैं कि ये मेरी याद में किया करो, the Lord didn't speak anything much about his resurrection. और प्रभु ने बहुत ज्यादा उसके पुनरुत्थान के बारे में नहीं कहा. Because when we partake of the Lord's Supper, we are remembering his death.
क्योंकि हम जब प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं तो हम उसकी मृत्यु को याद कर रहे हैं, Because it is through his death that we have been reconciled back to God. क्योंकि यीशु के मृत्यु के द्वारा हमको परमेश्वर से फिर से जोड़ दिया It गया। is through his death that he destroyed him that had the power of death, that is the devil. उसकी मृत्यु के द्वारा ही उसने उसको नाश किया जिसके पास मृत्यु का सामर्थ था, जो शैतान है। Hallelujah. हालेलुया। So the death of the Lord Jesus Christ was necessary. तो यीशु मसीह का मरना जरूरी था। Listen, he didn't die for us. अब समझिए कि वो हमारे लिए नहीं मरा, He died as us. वो हम जैसा बनकर हमारी जगह पर मरा। He became the very embodiment of sin. वो पाप का देह रूप वो बन गया। And the scripture says that for he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. और वचन कहता है कि जिसको पाप पता नहीं था उसको उसने हमारे लिए पाप बनाया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। No wonder Melchizedek is called the king of righteousness. और इसीलिए मेल्कीसेडेक को धार्मिकता का राजा ऐसा कहा गया। King of righteousness and king of peace. धार्मिकता और शांति का राजा। And the word declares in the book of in Romans chapter 5 verse 1. रोमियो के 5:1 में वचन कहता है, Therefore being justified, being declared righteous by God, we have become one with God through our Lord Jesus Christ. और इसलिए परमेश्वर के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के द्वारा हम यीशु मसीह से पिता से एक जुड़ गए हैं। The King James says, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. और एक दूसरा किंग जेम्स वर्जन कहता है कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाने के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ शांति हो गई है, हमारे और परमेश्वर के बीच। Because of the blood of Jesus, God is no longer at war with us. क्योंकि यीशु का लहू हमारे लिए बहाया गया था, इसलिए परमेश्वर के और हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं है। The blood of Jesus Christ has brought peace between you and God. यीशु के लहू ने हमारे और परमेश्वर के बीच में मेल मिलाप कराया है। That's why God is no longer mad at you, He's madly in love with you. इसीलिए परमेश्वर आज आप पर क्रोधित नहीं है, वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है। Hallelujah. हालेलुया। And we partake in the Lord's Supper with joy और इसीलिए हम प्रभु भोजन में आनंद के साथ भाग लेते हैं, for what He has done for us. जो उसने हमारे लिए किया है। Hallelujah. हालेलुया। Let's partake. Thank हम you, इसमें Lord भाग Jesus. लेंगे। You all can receive your healing. आप लोग अपनी चंगाई को ग्रहण कर सकते हो, Receive it in the name of Jesus. उसको यीशु के नाम से ग्रहण करो। In every part of your body, अपने शरीर के हर एक हिस्से में, in every cell of your body, अपने शरीर के हर एक सेल में, every part of your body is revitalized in the name of Jesus. आपके शरीर का हर एक हिस्सा नया हो रहा है यीशु के नाम से, Because of the Lord's Supper, क्योंकि प्रभु भोजन हमने लिया है because of the shed blood of Jesus, यीशु के उस बहाए हुए लहू के द्वारा, because of His death and because of His resurrection. यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा। Amen. आमेन। Hallelujah. अनाउंसमेंट्स कर रहा हो तो ये डायलॉग बोलना बनता है, आवाज नहीं आ रही है। प्रेज गॉड। पॉपुलर डिमांड पे मैं फिर से आ गया अनाउंसमेंट्स के लिए, इस बार लिख के लाया हूं मैं। थैंक यू जीसस। सो अनाउंसमेंट्स है, 20 जुलाई को हमारी फास्टिंग प्रेयर हो रही है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है लेकिन फ्री है, लेकिन फिर भी आप अगर रजिस्ट्रेशन चार्ज देना चाहते हो तो हम ले सकते हैं। कितने लोग आएंगे फास्टिंग प्रेयर के लिए? दिन भर हम लोग फास्टिंग प्रेयर करेंगे। पिछली बार कितने लोग आए थे? ठीक है, बाकी लोग पश्चाताप करो और इस वाले में आ जाओ। 20 जुलाई को हम लोग दिन भर प्रभु के साथ में समय बिताने वाले हैं, और ज़्यादा करके हम लोग, हाँ यहीं पे आलिशा सिस्टर पीछे से डिस्टर्ब कर रही है, इसी जगह पे होगा। पिछली बार हम दूसरे हॉल में थे, इस बार इसी हॉल में आपको प्रभु के साथ समय बिता सकते हो। वर्शिप के लिए हम लोग ज़्यादा टाइम देने वाले हैं, तो आइए और इसका लुत्फ उठाइए। हम लोग परमेश्वर के, हाँ संडे को है 20 जुलाई, मतलब अगला संडे है ना। हाँ आज 13 है, 7 दिन बाद 20 जुलाई आता है अगला संडे। उसके 7 दिन बाद लेडीज़ मीटिंग होगा 27 जुलाई को, वो भी संडे है।
वो शाम को 6 बजे पास्टर जी के घर पे होगा। उसके लिए सिर्फ लेडीज़ आए। सब लेडीज़ अपने हाथ उठाए। तो आप लोगों ने हाथ उठाए ये बोल के कि आप लोग आ रहे हो, तो परमेश्वर के सामने आपने कबूली किया है, आपको आना होगा। इसके अलावा हमारा सैटरडे फेलोशिप भी होता है। सैटरडे फेलोशिप क्यों हम लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये चर्च जब स्टार्ट हुआ था, चर्च स्टार्ट करने का ऐसा आइडिया नहीं था। प्रभु ने उसका बेसिस वो सैटरडे को जब लोग मिल के परमेश्वर के वचन को खोजते हैं ना, छानते हैं। यहाँ पर आपने बार बार सुना होगा कि परमेश्वर के वचन को समझो, सीखो, उसको पढ़ो, उस पर मनन करो। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते एक बार पढ़ के हमको समझ में नहीं आता है। सैटरडे में बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर खोलता है ना, पवित्र आत्मा खोलता है, क्योंकि हम सब वहाँ पर एक स्टूडेंट जैसे बैठे होते हैं। वहाँ पे कोई भी ऐसे प्रचार नहीं कर रहा होता है, हम लोग सब बैठ के सब लोग रुके कि हमको क्या पवित्र आत्मा इसमें से सिखाएगा। तो उसमें जितने लोग आना चाहेंगे, आप आओगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। इसके अलावा हमारी सेल मीटिंग्स भी हो रही हैं। अगर आप चाह रहे हो कि आप किसी को जानते हो, उनके घर में सेल मीटिंग्स को आपको स्टार्ट करना है, हम लोग आएंगे। परमेश्वर के उसी वचन को हम लोग और गहराई से आपको बताएंगे। आपके जीवन में जो इश्यूज आप डील कर रहे हो, जिन समस्याओं में आप हो, परमेश्वर का वचन उसके बारे में क्या कहता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, इस पर टीचिंग करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल भी है। कितने लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है यूट्यूब चैनल को? कितने लोगों के पास फ़ोन है? आधे लोग हाथ भी नहीं उठा रहे। फ़ोन नहीं है सबके पास? ठीक है, जिसने भी नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे जो प्रचार होता है इसको आप बार बार जब जाके सुनोगे तभी वचन आता है, क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास सुनने और सुनने के द्वारा आता है। तो हमको इस वचन को बार बार सुनते रहना है। और आराधना भी जो हम करते हैं यहाँ पे, उसका भी अपलोड किया जाता है, उसको भी आप सुन सकते हो। बहुत लंबा चल रही है। ट्यूसडे मीटिंग होता है इसके अलावा हमारा ऑनलाइन, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। तो इसका एक अलग सा ग्रुप है, ट्यूसडे का मीटिंग है, और उसके अलावा एक थर्सडे का भी मीटिंग है। ट्यूसडे को ये 7 बजे होता है शाम को। ट्यूसडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुरुवार। मंगलवार को शाम को होता है 7 बजे 6 बजे। और गुरुवार को दोपहर को 2 बजे होता है अन्य भाषा वाला मीटिंग। तो उसमें हम लोग जुड़ के अन्य भाषा में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं और इंटरसेशन भी करते हैं। तो इन 2 मीटिंग्स में अगर आपको जुड़ना है तो अलीशा सिस्टर से आप मिलिए, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा। वो एक अलग सा ग्रुप है जहाँ पे हर मीटिंग का लिंक डाला जाता है, और ऑनलाइन आप घर पे बैठे बैठे प्रार्थना कर सकते हो, फेलोशिप में जुड़ सकते हो। इसके अलावा हम लोग योजना कर रहे हैं कि एक चंगाई की और छुटकारे की सभा फ्राइडेज को हम लोग गूगल मीट पे स्टार्ट करने वाले हैं। ऑनलाइन होगा ये भी, हर फ्राइडे को शाम को उसका शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा। तो जो लोग इन दोनों ग्रुप्स में हैं उनको वो आसानी से मिल जाएगा। जो लोग इसमें नहीं हैं उन ग्रुप्स में आप जुड़ जाइए, तो आपको भी ये मीटिंग का लिंक मिलेगा। इस मीटिंग में क्या होने वाला है, जो नए लोग हैं, जिनको चंगाई की ज़रूरत है, जिनको सुसमाचार सुनने की ज़रूरत है, जिनको छुटकारे की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए ये मीटिंग होगा। और आप लोगों को जुड़ा सकते हो, या अपने घर में आप लगा के उसको फ़ोन में लगा के और लोगों को बिठा के भी सुना सकते हो। और हम विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर बहुत चिन्ह चमत्कार करने वाला है इन मीटिंग्स में, बहुत लोगों का जीवन बदलने वाला है। आमीन। सो इसके अलावा एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक और अनाउंसमेंट बोल सकते हैं इसको। तो कुछ भाइयों से मैंने सुना था कि वो लोग चाह रहे थे कि चर्च की क्या ज़रूरतें हैं वो आप अगर बताएं तो उसमें हम लोग कंट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कुछ लेना है तो उसके लिए मैंने तैयारी नहीं किया है क्या बोलना है बल्कि, बट बेसिकली चर्च में हम लोग मिक्सर लेने वाले हैं, क्योंकि वर्शिप टीम जो कर रहा है अभी हम सब वर्शिप नहीं कर पा रहे एक साथ, जितने भी क्वायर के लोग हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम्स का कुछ लिमिटेशन है। तो उसके लिए हम लोग एक मिक्सर लेने वाले हैं जिसमें और लोग साथ में जुड़ पाएंगे। फिर स्पीकर्स वगैरह लेने वाले हैं। और ये बताने का जो मकसद है आपको वो सिर्फ यही है, क्योंकि हमने सुना था लोगों को लोग पूछ रहे थे कि भाई हमको बताओ अगर ऐसा कुछ करना है तो हम लोग इसमें देंगे, क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु इस चर्च को उसी ने शुरू किया है, हमारी जो भी ज़रूरत है उसी को वो पूरा कर रहा है। तो इसलिए हम ऐसे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अगर आपको चाह रहे हो कि आप जो रेगुलर गिविंग है उससे ज़्यादा अगर आपको एक बर्डन है कि
इस चीज़ के लिए आपको परमेश्वर के राज्य में बोना है तो आप आके अलीशा सिस्टर से मिल सकते हो, आप बता सकते हो, तो हम आपको बताएंगे कि क्या क्या इक्विपमेंट ले रहे हैं। उसके हिसाब से आप उसमें ये कर सकते हो। आई थिंक क्वायर के बहुत सारे लोग बोल रहे थे बार बार कि हमको कंट्रीब्यूट करके लेना है, तो ये आप लोगों के लिए मौका है जिसको भी ये करना है। आई थिंक दैट्स ऑल, ये सारी अनाउंसमेंट्स है। तो मैं बुलाना चाहूँगा ब्रदर आशीष को, जो मुझे दिख नहीं रहे। यस, ब्रदर आशीष दिख गए मुझे। ब्रदर आशीष के साथ ट्रांसलेशन के लिए ब्रदर हमीश आ रहे हैं, तो हम जोरदार तालियां बजाएंगे इनके लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Did you all enjoy the worship? क्या सबने वर्शिप में आराधना में मज़ा होता है? I really thank God for the amazing worship team that God has given us. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो भी हमारी आराधना की टीम है, हमारा क्वायर है, उनके लिए। Specifically today, why I want to mention this is, आज मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, if you noticed, we started a bit late. आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने थोड़ा लेट शुरू किया। A couple of instruments we forgot at home, and people went to brought them. मैं एक इंस्ट्रूमेंट भूल गया था तो मैं घर लेने गया था वो, मैं मतलब मैं। So why I am telling you this? Even though that happened, the service started late. Still, there was no panic to close the worship quickly. But everyone flowed in the worship. No one was bothered about the time and anything. But there was just the flow, and people were flowing in the worship. तो ये देर से शुरू हुआ लेकिन फिर भी ऐसे कोई परेशान नहीं हो रहा था, कोई भी अपना शांति नहीं खो रहा था कि अरे जल्दी शुरू करना है, जल्दी ख़त्म भी करना है, लेकिन सब लोग पवित्र आत्मा के बहाव में बह रहे थे और आराधना कर रहे थे। And that's what we really need, because God created us to worship Him. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है उसकी आराधना करने के लिए भी। Because the word says He seeks right now also. It's a present tense that He is seeking for those who will worship Him in truth and in spirit. क्योंकि प्रभु का वचन कह रहा है आज के समय में भी कि वो ऐसे पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करे। Even today, currently in the heaven, the angels and the elders, they are just worshiping God, saying, Holy, holy, holy. क्योंकि अभी इस समय भी जब आप यहाँ पे बैठे हो, स्वर्ग में स्वर्गदूत और जो अगुए हैं वो पिता की आराधना करते रहते हैं, पवित्र 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 ऐसा कह के। And when we will go to heaven, और जब हम स्वर्ग जाएंगे we'll also do the same thing. हम भी वही करेंगे। We'll put down our crowns before the Lord, तो हम हमारे जो मुकुट है उसे प्रभु के पैरों पे रखेंगे and we'll just sing, keep on singing, Holy, holy, holy are you God. और हम सिर्फ गाते रहेंगे कि पवित्र 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 परमेश्वर। Thank you, Jesus, for the wonderful worship team. धन्यवाद यीशु एक हमारी आराधना की टीम के लिए। That you are building this choir, Lord. तो आप ही इस क्वायर को बढ़ा रहे हो प्रभु। And that you are building up all of us to go to nations, to tell, to show the nations that what is true worship. और प्रभु आप हमें तैयार करें ताकि हम बहुत सारे दूसरे देशों में भी जाए, लोगों को दिखाए कि सच्ची आराधना क्या होती है। That you are preparing us, preparing our hearts, creating new musicians. ताकि आप हमारा हृदय तैयार करो, हमें तैयार करो, एक नए नए म्यूजिशियन है उनको तैयार कर रहे हो। New instruments, everything, every setup that you are providing us. नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे प्रभु, सारा सेटअप जो है वो आपने भी आप वो ला रहे हो, इसलिए धन्यवाद प्रभु। Because it is to glorify you alone, Jesus. क्योंकि इसका उद्देश्य एक ही है प्रभु कि आपको सारी महिमा मिले। Thank you, Master. धन्यवाद पिता। Now, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we give control of this service into your hands. हम इस सभा का पूरा नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं। The word says, वचन कहता है your word is truth. आपका वचन सत्य है And let this truth manifest today in this place. और ये आपका सत्य यहाँ पे प्रकट हो प्रभु। Your word says, Lord, that you shall know the truth and the truth will set you free. और प्रभु आपका वचन कहता है कि आप तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें बंधन मुक्त करेगा। And as the word being preached, Master, और जैसे प्रभु वचन बताया जाएगा, let that truth be manifested in this place. और वही सत्य इस जगह पे प्रकट होए प्रभु। That whoever is bound in some of the areas in their lives, कि हर कोई अगर किसी उनके जीवन के किसी भाग में अगर बंधन है, they will know the truth today and will be set free.
तो वो आज सत्य जानेंगे और उस बंधन से आज वो मुक्त हो जाएंगे प्रभु। We receive it, Lord. हम इसे स्वीकार करते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। So will Alisha last night messaged me at 1:30 और कल रात को अलीशा सिस्टर ने मुझे मैसेज किया 1:30 बजे, and I believe she was sleep typing और मुझे लग रहा है कि वो शायद नींद में मैसेज कर रही थी, because the sentence that she typed, so it didn't make any sense. जो वाक्य उन्होंने लिखा उसका कुछ मतलब नहीं बन रहा था, But I understood the gist of it, लेकिन मैं समझ गया उसका क्या मतलब है। that she wanted to for me to share something about prosperity. कि वो चाहती थी मैं समृद्धि का भी वचन लूँ। And so we'll go to 2 Corinthians chapter 12, chapter 9 हम दूसरा कोरिन्थियों का 9वां अध्याय में जाएंगे, and verse 6 and 7. वचन 6 और 7। It says, "But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or out of necessity, for God loves a cheerful giver." ये वचन हम पढ़ेंगे दूसरा कोरिन्थियों का 9वां अध्याय 6 वचन। परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। So it is saying that who will sow sparingly will also reap sparingly, तो ये वचन कहता है कि जो थोड़ा बोता है वो कटनी भी थोड़ी करेगा, and who will sow bountifully will also reap bountifully. और जो बहुत बोता है वो कटनी भी बहुत करेगा। If you want to reap bountifully, you need to sow bountifully. अगर आपको बहुतायत में कटनी चाहिए तो आपको बोना भी बहुतायत में पड़ेगा। If see, this is sowing and reaping principle. This is the law that God has given on this earth. Okay. और ये जो बोना और कटनी का जो सिद्धांत है वो परमेश्वर ने ही दिया है इस पृथ्वी के लिए। See, we grace people, we say that we hate law. We are not of the law, right? जो अनुग्रह में चलने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि हमें नियम शास्त्र पसंद नहीं है, हमें उसका पालन नहीं करना है। But there are certain laws that God has still kept in place. For example, this sowing and reaping. और लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जो प्रभु ने अभी भी रखे हैं। उसमें से ये एक नियम है कि बोना और कटनी का जो नियम है। So I was listening to one day to Pastor Chris, और मैं पास्टर क्रिस को सुन रहा था एक दिन, and he was sharing about one testimony. और वो एक गवाही बता रहे थे। So one of his church members, और उनके कलीसिया का एक मेंबर थे, he had some 1 million or 2 million nairas, their currency in their bank account. उनके पास 1-2 मिलियन मतलब 10 से 20 लाख नायरा थे उनकी करेंसी में। And they heard about sowing and reaping. और उन्होंने सुना बोना और कटने के सिद्धांत के बारे में, That some who will sow bountifully will also reap bountifully. उन्होंने यही वचन सुना कि जो बहुत बोता है वो बहुत कटनी करेगा। So what they did, तो उन्होंने क्या किया, they took that whole amount उन्होंने पूरी वो रकम ली and they sowed in the church. और वो उनकी कलीसिया में बोई। And what they testified after some time, और उन्होंने कुछ समय बाद ये गवाही दी what amount they sowed in the church, कि जितनी रकम उन्होंने उस कलीसिया में बोई थी, that is the minimum amount always there in their bank account. तो वो कह रहे थे कि उतना उनके अकाउंट में उतना अमाउंट हमेशा रहता है। Some people sowed lands to the church. तो कुछ लोग थे जिन्होंने जमीन बोई कलीसिया में। For example, they sowed one land. तो उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा जो था वो दे दिया चर्च के लिए। Now they are the owners of multiple lands. तो आज वो बहुत सारे जमीनों के मालिक है। See the faith working there. तो आप देख सकते हो विश्वास कैसे काम कर रहा है। They just took hold of the word उन्होंने सिर्फ वचन को लिया and they heard the word, they sowed, और वचन सुन के उन्होंने बोया, and now they are reaping bountifully. और आज वो बहुतायत से कटनी कर रहे हैं। Why do we pay our tithes to the Lord? जब हम बहुत दशमांश जो है प्रभु को देते हैं, Why do we give? तो हम क्यों देते हैं? Is it a law? Is it a mandate for us to give in the new covenant? तो ये क्या जरूरी है सबको देना है? ये क्या नियम है? It was the law in the old covenant. ये जो नियम है पुराने नियम में था, But in the new covenant, लेकिन नए नियम में, God says He loves a cheerful giver. नए करार में प्रभु कह रहा है कि उसे हर्ष से देने वाला
उसे पसंद है. In the old covenant, it was you were bound to give your 1/10. Okay, I think Jesus said the Pharisees were giving 1/10 of everything that they had. यीशु कहते हैं कि एक जगह पे कि जो फरीसी लोग हैं वो उनकी हर एक वस्तु का 10वां भाग दशमांश देते थे. Now, when we are under the grace, we are under the new covenant. जब हम कृपा के इसमें आए हैं, नए करार में आए हैं, And if we say we are a cheerful giver, और अगर हम कह रहे हैं कि हम एक हर्ष से देने वाले हैं, should we limit ourselves to give only 1/10? तो क्या हमें सिर्फ दशमांश दे के ही चुप रहना है? See, if you say God is my source, अगर आप कहते हो कि परमेश्वर ही मेरा स्रोत है, if God is your source and He is the owner of everything that you have, और अगर परमेश्वर आपका स्रोत है और वो उस सब का मालिक है जो आपके पास है, and if He asks you to give everything, are you in a position to give? और अगर प्रभु आपसे कहे कि तेरे पास जितना भी है तुझे सब देना है, क्या आप वो देने के लिए तैयार होंगे? See, it's very easy to go in the flow and say, yes, amen, I will give. But can you just take a pause and really check your hearts? If God calls you to give everything that you own right now, will you be able to give? और ये बहाव में जाके कहना कि हाँ आमेन मैं दे सकता हूँ, ये बहुत आसान है. लेकिन अगर हम थोड़ा रुक के अगर सोचे सच में कि अगर प्रभु ने मुझसे कहा कि तुझे जितना भी तेरे पास है सब देना है, तो क्या मैं देने के लिए अब भी तैयार हूँ? Remember the widowed lady who just have only 2 coins with her. तो आपको याद होगा जो एक विधवा स्त्री थी जिसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे. She gave all the 2 coins that she had with her. उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे और दोनों के दोनों सिक्के उसने दान पेटी में डाल दिए. And still she was in old covenant. और वो पुराने नियम में जीने वाली स्त्री थी. And if we boast about that we are a new covenant people, we are grace people, how much more we should give? और अगर हम कह रहे हैं कि हम तो नए नियम के लोग हैं, हम नए करार में आए हैं, तो हमें कितना ज्यादा देना चाहिए? See, when we say God is truth, all other everything is lie, right? और अगर हम वचन के हिसाब से अगर हम कहते हैं कि प्रभु अकेला सच्चा है, बाकी सब झूठा है, So God should have also sowed, correct? तो इसका मतलब अगर प्रभु बोने के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रभु ने खुद भी बोया होगा. God the Father sowed His Son first. कि प्रभु ने अपना बेटा बोया पहले. He sowed His Son first, and now the harvest that we are seeing in billions and billions, it's because the one son that He sowed. और प्रभु ने एक बेटा बोया, इसलिए आज हम देख पा रहे हैं कि करोड़ों लाखों करोड़ों उसके बेटे तैयार हो रहे हैं, वो उस वजह से कि उसने पहले एक बेटा बोया था. Now, if God could sow His only begotten Son, और अगर प्रभु ने अपना इकलौता पुत्र नहीं बोया होता, God has because God has sown His only begotten Son, क्योंकि प्रभु ने अपना इकलौता बेटा दिया है, बोया है, and God has given us everything और प्रभु ने हमें सब दे दिया है through His Son, उसके बेटे के द्वारा, are we the owners of anything that we own? We say that we own these things. Are we the real owners? तो क्या इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी है वो हमारा खुद का है, हम उसके मालिक है? क्या ऐसा हो सकता है? See, a cheerful giver is the one when he sees an opportunity, he says, okay, I'll sow here, I'll sow here, I'll sow here. जो हर्ष से देने वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो उसे मौका ढूंढता है कि मैं कहाँ पे बो सकता हूँ, यहाँ पे बोना है, यहाँ पे बोना है, यहाँ पे देना है मुझे. How you can be a cheerful giver? और आप हर्ष से देने वाले कैसे बन सकते हो? When we have the mindset that we do not own anything. ये तभी मुमकिन है जब हमारा मन ऐसा तैयार हो कि हम ऐसा सोचे कि मैं किसी भी चीज का मालिक नहीं हूँ. Not even your family, not even your children, nothing. You own nothing in this world. आपके परिवार के आप मालिक नहीं हो, आपके बच्चों के आप मालिक नहीं हो, इस दुनिया में जो कुछ भी है आप किसी के भी मालिक नहीं हो. You are just the steward that God has appointed on certain things in your life. आप सिर्फ भंडारी हो, जो मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है सारी चीजें, वैसे आप हो. Say, sometimes we say that, yeah, I own a car, I own an iPhone, I own a house. We say these things because we have bought it with money. हम बहुत बार कहते हैं कि अरे मैं इस कार का मालिक हूँ, मैं इस आईफोन का मालिक हूँ, मैं इस जमीन का मालिक हूँ, घर का मालिक हूँ, क्योंकि हमने पैसा दे के खरीदा है इसलिए. So that's why we think that, okay, because I have paid it, so that's why I am the owner of these things. इसलिए हम सोचते हैं कि क्योंकि मैंने पेमेंट किया है, मैंने भुगतान किया है, इसलिए मैं मालिक बन गया हूँ. But if you really see the money that we say that I have earned it, the real source is God.
लेकिन अगर हम ऐसा देखते हैं कि मैंने पैसे कमा के लिया है, लेकिन मेरा जो स्रोत है वो तो प्रभु है, तो सच्चा मालिक तो वो है। Because he has kept you in good health, because you are operating in his divine health, you are operating in his wisdom and his strength, that's why you are able to earn. क्योंकि प्रभु ने आपको भला चंगा रखा है, आपको समृद्ध किया है, इसलिए आप जाके ये सब खरीद पा रहे हो, इसलिए आप मालिक बन पा रहे हो। So if we have that kind of attitude that yes, I am not the owner, I am just the steward of things that God has given in my life. इसलिए अगर हमारा मन सा ऐसा बन जाता है कि मैं किसी भी चीज़ का मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैनेज कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे दी है उनका, Then it becomes very easy to sow. तो ऐसा जब हमारा मन बन जाता है तो हमें बहुत आसानी होती है बोने के लिए। See, it's not the correct statement which Job said that God has given, God has taken. Okay, that's not the correct statement. But when in terms of giving, what God has given, we are giving back to God. अयूब ने कहा था एक जगह पे कि प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया, लेकिन वो सही वाक्य नहीं है, वैसा नहीं होता है। प्रभु ने जो हमारे बारे में ऐसा होता है कि प्रभु ने जो हमें दिया है उसमें से हम प्रभु को वापस दे रहे हैं। And that's how we become a cheerful giver, that okay, I know that I am just a steward, that God has ordained me, I can give anytime, whatever, even at night 3 a.m. someone calls me to ask for help, I can give. तो प्रभु ने हमें ऐसा बनाया है कि ताकि हमारा मन हमेशा तैयार रहे देने के लिए, कि रात को अगर 3 बजे भी कोई मुझे कॉल करता है और मुझसे मदद मांगता है तो भी मैं उससे देने के लिए तैयार रहूंगा। Because if God put in my heart, yeah, you have to help him, definitely I will help him. अगर प्रभु ने हमारे मन में डाला है कि आपको तुझे इसकी मदद करनी है तो हमें करना ही है, Because I am just a steward. क्योंकि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैनेजर हूँ। I cannot hold things with my tight grip. क्योंकि और मैं सारी चीज़ों को अपनी पकड़ में नहीं रख सकता। If we read Philippians chapter 4 verses 19, अगर आप फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 19वां वचन पढ़ते हैं, it says, and my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. ये वचन कहता है कि और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। Okay, how many of you have claimed this verse? कितने लोग हैं जिन्होंने इस वचन को लिया है या बोला है, घोषणा की है? Right? Many of us have done it. Correct? बहुत लोगों ने की है। But if we see why Paul is saying this to the church of Philippians, तो हम अगर ध्यान से देखते हैं कि पौलुस फिलिपियों की जो कलीसिया है उनको ऐसे क्यों कह रहा है? because Philippian church, they just understood that Paul needed help. Paul did not ask them for help, but they understood on themselves that yeah, Paul needs some help. So they themselves gathered some money and gave gift to Paul. तो फिलिपियों की जो कलीसिया है उनको पौलुस ने जाके मदद नहीं मांगी थी कि अरे मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे मदद चाहिए, लेकिन इन लोगों ने पहले जान लिया था कि अरे पौलुस को जरूरत है, तो इन्होंने सब धन जमा किया और पौलुस को भेज दिया अपनी ओर से। And that's when Paul is saying now, इसीलिए पौलुस अब कह रहा है my God कि मेरा परमेश्वर shall supply all your needs वो तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा according to his riches. कि उसकी महिमा सहित। See, 3 characters are here in place. Okay, तो यहाँ पे 3 बातें बता रही Paul is saying my God, one पहले कह रहा है, character, पौलुस कह रहा है मेरा परमेश्वर shall supply all your needs वो तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा according to his riches. कि उसकी महिमा के अनुसार। Now just some time before Manoj brother shared about people having heart to buy some instruments. तो अभी मनोज ब्रदर बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने दिल में डाला है कि उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं, कुछ चीजें लेनी है चर्च के लिए। We had a choir meeting where we were discussing on all these things. तो हमारी क्वायर मीटिंग में हमने ये सारी बातों पे डिस्कशन किया And था। that's why I believe that our church people know this verse correctly, that church needed something and they themselves came to offer that yeah, we would like to buy some things. और हमारे क्वायर के लोग हैं उनको पता है इस वचन के बारे में, इसलिए उन्होंने सोचा और उन्होंने जाके बात की कि हमें ये सारी चीजें खरीदनी है, हमें लेना है ये सब। That's where even we have to just be alert. Who is there any man of God, any church that needs help and they are not able to say, but we understand they need help and we ourselves can go and help them. तो इसलिए हमें चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है कि हमारे आजू बाजू जो भाई है बहन है उनको किसी बात का जरूरत है, किसी परेशानी में है, तो जाके हम उनकी मदद भी हमें करनी है। And that's when this verse will be correctly fulfilled in your life.
तब जाके ये वचन सही तरह से आपके जीवन में पूरा होगा। Because Paul is not saying my needs, he's saying your needs. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा है कि प्रभु मेरी घटी को पूरा करेगा, वो कह रहा है तुम्हारी घटी को पूरा करेगा। He's saying that it's not about my need. You just, because you gifted me, that's why your needs will be supplied by God. तो पौलुस कह रहा है कि तू क्योंकि तुमने मेरी जरूरत पूरी की, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। Amen. आमीन। So that's what I wanted to share about prosperity. That you have to have an understanding that we are just a steward, and we need to be good stewards of the things that God has given us. इसीलिए ये समृद्धि के बारे में मुझे यही बताना था कि हमें ऐसा मन रखना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं है, हम सिर्फ अच्छे मैनेजर है, जो हमें अच्छा मैनेजर बनना है और प्रभु के लिए देना है। And that's how we could become a cheerful giver. और तब जाके हम प्रभु के राज्य में हर्ष से देने वाले बनेंगे। And second point, और दूसरा मुद्दा, that you need to be alert, you need to be aware about the needs that any church or any man of God has. और हमें जो कलीसिया है जिसमें यहाँ पे प्रभु के लोग हैं, उनके ज़रूरत के बारे में भी हमें ध्यान रखना है हमेशा कि किसी को और कोई चीज़ की ज़रूरत है तो हमें तैयार रहना है। And that's where this verse Philippians 4:19 will be fulfilled in our lives. और जब हम ऐसा करेंगे तो फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 19वां वचन जो है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। Amen. आमीन। Okay, we'll move to the actual word. हम वचन में जाएंगे। So, few weeks ago, brother Manish, Amish Manish. कुछ दिन पहले ब्रदर अमीश ने कहा था, So he asked me, brother, you have not shared about faith. Okay. हाँ, तो मैंने उनसे कहा था कि अरे ब्रो तूने नहीं बताया, मतलब तूने वर्ड नहीं लिया अभी तक फेथ पे। So will you be sharing the revelations or the teachings, the learnings that you have about faith? तो मैंने उनसे पूछा था कि यार आप कब बताओगे, आपने क्या सीखा है फेथ के बारे में, आपको भी शेयर करना चाहिए। So I said, okay, next time whenever there is a chance, I'll share. तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा मैं करूँगा। So since that time I was thinking, okay, about faith. Now uncle has shared about faith, Clifford brother has shared about faith, Dylan bro has shared about faith, Alicia has shared about faith, Amish has also shared about faith, Manoj has also shared about faith. So everyone has shared about faith. So what something new I should share that will not get people bored. Okay, these things I have heard, they should not say all these things. तो मैं सोच रहा था कि अरे अब तो अंकल ने भी बता दिया विश्वास के बारे में, मनोज ने बताया, अलीशा ने बताया, अमीश ने बताया, क्लिफर्ड ब्रदर ने बताया, सब ने बता दिया, तो मेरे पास अभी क्या ऐसा बचा है जो मुझे नया बताना चाहिए कि लोग बोर नहीं हो। तो मैं सोच रहा था कि क्या शेयर करना चाहिए। So I started with the first question. तो मैंने एक सवाल से शुरुआत की What is faith? कि विश्वास क्या है, And the answer came, और उत्तर आया Hebrews 11:1. कि इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय पहला वचन। So we'll open that. तो हम वहाँ जाएंगे। Hebrews chapter 11 verse 1. इब्रानियों का पत्री 11वां अध्याय पहला वचन। Now faith is the substance of things hoped for अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय and the evidence of things not seen. और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। So this is the biblical definition of faith that's been written in Hebrews 11:1. तो ये बाइबल का उदाहरण है विश्वास के बारे में, बाइबल की परिभाषा है विश्वास के बारे में। There is one more place where there is a definition of faith, तो और एक वचन है जहाँ पे विश्वास के बारे में बताया गया है, and we'll go there. हम वहाँ जाएंगे। 1 John पहला यूहन्ना chapter 4, चौथा अध्याय chapter 5 verse 4. 5वां अध्याय 4था वचन। In NKJV it says, for whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. ये कहता है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Okay, so it's much easier in the Passion Translation. तो PPT. जो पैशन ट्रांसलेशन है उसमें थोड़ा आसानी है इसके बारे में। It says, you see, every child of God overcomes the world, for our faith is the victorious power that triumphs over the world. तो पैशन ट्रांसलेशन में जो कहा गया है वो ऐसा लिखा है कि आपने देखा है कि परमेश्वर का हर एक पुत्र जो है, हर एक बच्चा जो है, वो इस दुनिया पे जय पाता है, और उसका विश्वास ही है जो उसे जय पाने की शक्ति देता है। It is saying that the child of God, it overcomes the world. तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का जो बच्चा होता है वो संसार पे जय पाता है।
And what is that overcoming power? और वो जय पाने वाली शक्ति सामर्थ क्या है? That is our faith. वो है हमारा विश्वास। Amen. Amen. We'll now these two definitions we have read from the Bible. तो ये दो परिभाषा आपने देखी है बाइबल से। Now I'll tell you some simple definitions. Okay. तो एक आसान परिभाषा हम देखेंगे। Faith says the same thing what the word of God says. विश्वास वही बातें बोलता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। Faith says the same thing what the word of God says about you. विश्वास वही बातें बोलता है आपके बारे में जो परमेश्वर का वचन बोलता है आपके बारे में। Faith is the response to the word of God. विश्वास जो है वो परमेश्वर के वचन के लिए हमारा उत्तर होता है। Did you understand what I'm sharing? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? Faith is the response to the word of God. That what word of God is saying about you, you are just responding to that. That is your faith. परमेश्वर जो हमारे बारे में कह रहा है उस वचन के लिए हमारा जो उत्तर होता है, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, उससे विश्वास कहते हैं। Okay, I'll give you an example. तो एक उदाहरण देखेंगे हम। We'll go to Ephesians chapter 1 verse 3, इफिसियों का पत्री पहला अध्याय तीसरा वचन में हम जाएंगे। in which Clifford sir shared last time, and he said that you read out this about 500 times, meditate on it, and then it should become a part of you. Okay, Ephesians 1:3. तो इफिसियों का पत्री पहला अध्याय तीसरा वचन क्लिफर्ड ब्रदर ने लिया था। उन्होंने कहा था कि ये हमें 500 बार तो पढ़ना चाहिए और उसके बाद हमें इस पे मनन इतना करना है कि ये हमारे लिए सच बन जाए। Okay, it says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ." तो ये वचन कहता है हमें हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। He has blessed us with every spiritual blessing in Christ Jesus in heavenly places. तो ये वचन कहता है कि उसने परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता ने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। So this is what the word of God is saying about us. तो यही वचन हमारे बारे में कह रहा है। Are we acting out? तो क्या हम इस पे कुछ कदम उठा रहे हैं? Are we believing that what word of God is saying about us? तो क्या हम विश्वास कर रहे हैं इस बात पे जो परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कह रहा है? Are we saying the same thing that God has already blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ Jesus? क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें हर प्रकार की आत्मिक आशीष पहले से ही दे दी है? क्या हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं? Are we saying these things? क्या हम ऐसा कह रहे हैं? If we are saying the same thing, अगर आप भी वही बात कह रहे हो जो ये वचन कह रहा है, that means that is your faith which is speaking. इसका मतलब ये जो बात कह रहे हो आप वो आपका विश्वास बोल रहा है। Amen. Amen. There are multiple Bible references which I can give. और बहुत सारे वचन है जो मैं बता सकता हूँ। Like 2 Peter 2:24, दूसरा पत्रस 2:24 which says that by his stripes you were healed. जो कहता है कि उसके खाए हुए कोड़ों से आप चंगे हो चुके हो। Your body is showing some sickness. आपका जो शरीर है वो कुछ बीमारी दिखा रहा है। So what are you saying? Are you saying the word of God which says you were healed, or you are saying that my body has some sickness? तो क्या आप ऐसा कह रहे हो कि मैं उसके खाए कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूँ, ऐसा कह रहे हो? या फिर आप कह रहे हो कि अरे मुझे थोड़ा अलग लग रहा है, मुझे लक्षण आ रहे हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, आप ऐसा कह रहे हो? What you are saying shows क्या कह रहे हो? what is your faith. आप क्या कह रहे हो उससे दिखता है कि आपका विश्वास कैसा है। As earlier I said, faith is what the word of God says. You say the same thing. जैसा मैंने कहा था कि विश्वास ये है कि आप उसी बात को दोहराते हो जो परमेश्वर का वचन कहता है। Your body is saying something else. आपका शरीर जो है वो कुछ और कह रहा है, Your situation is saying something else. आपकी जो परिस्थिति है वो कुछ और कह रही है। You are seeing that you are in a debt, you are a huge loan debt you are in currently. आपका जो परिस्थिति आर्थिक परिस्थिति है वो कह रहा है कि आप बहुत बड़े कर्जे के नीचे हो। Your body is showing symptoms of something which you are not aware about. और आपका शरीर शायद ऐसा कुछ लक्षण दिखा रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। So at that moment what you are saying, तो उस समय पे आप क्या कह रहे हो? it determines whether you are saying the faith of God or you are just saying the human faith.
और ये इस उस समय से आपको पता चल जाएगा कि आप परमेश्वर के विश्वास से बात कर रहे हो या आपके खुद के शरीर वाले विश्वास से बात कर रहे हो. If you are saying what the word of God says that you were healed according to the 2 Peter 2:24, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आप उसके खाए कोड़ों से चंगे हो चुके हो, and if you are saying that God has already blessed us with all spiritual blessing in heavenly places, अगर आप ऐसा कह रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे सारी आत्मिक आशीष से पहले ही दे दी है and His divine power has given unto us all things, और उसके सामर्थ्य से मुझे ये सारी बातें मिल चुकी है, then you are speaking your faith. तब आप कह सकते हो कि आपका विश्वास बात कर रहा है. That is your actual faith that you are carrying right now. वो आपका असली विश्वास है जो आपके अंदर अभी है. Okay, I'll share one simple testimony एक गवाही मैं बताना चाहूंगा. because it becomes easy for us to understand using some examples, right? तो जब हमें कुछ उदाहरण से पता चलता है तो आसानी होती है समझने में. So a couple of weeks ago, कुछ हफ्तों पहले it's on the similar lines which last week uncle shared. पिछले हफ्ते जो पास्टर ने बताया उसके बारे में ही है. So on Saturday we usually have the choir practice, तो शनिवार को हमारा क्वायर प्रैक्टिस होता है and just a few hours before the choir practice, और क्वायर प्रैक्टिस के कुछ घंटों पहले I started having a fever sensation in my body. तो मुझे मेरे शरीर में ऐसा लगने लगा कि बुखार जैसा लग रहा था मुझे. So I just took a pullover. I just took a blanket, and I just laid. I was just lying on my bed, तो ब्लैंकेट लेके मैं मेरे बेड पे लेटा हुआ था and I was just thinking whether to go to choir practice or not. और मैं सोच रहा था कि अरे क्वायर प्रैक्टिस जाऊँ या नहीं जाऊँ. And then brother Amish called. तो तब मैंने कॉल किया इन्हें. So Amish said that he has some work to do, so he won't be able to come to the choir practice. तो मैंने इन्हें बताने के लिए कॉल किया था कि अरे मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे कुछ काम है, तो तू चले जा. And that time there was no one on the octopad. और उस समय कोई भी नहीं था ऑक्टोपैड बजाने के लिए. And I thought, okay, Amish is not there, so I will go. तो मैंने सोचा कि अरे अमिश नहीं है तो मैं चला जाता हूँ. And I just took my this bike jacket, और मैंने जैकेट लिया मेरा and I just closed the jacket, and throughout the practice I was just playing with my jacket on. तो मैंने पूरा जैकेट इधर तक बंद करके मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा था. And I was just couple of time I just said that by his stripes I am already healed. और तब मैं बजाते हुए कह रहा था कि उसके काय कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूँ. So you won't believe, I was feeling weakness in my body. I was shivering when I was riding my bike to the practice place. और जब मैं जा रहा था प्रैक्टिस के लिए बाइक चला के तो मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी, मैं काँप रहा था थोड़ा. But you won't believe, while I was playing, my fever that moment itself went. और जब मैं वो प्रैक्टिस में बजा रहा था तो उस समय मेरा बुखार पूरी तरह से निकल गया. See, sometimes when we all get worked up and we try to shout, yeah, you have to get out, you devil, leave my body. We just keep on shouting on certain times, right? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे तो हम शैतान पे चिल्लाते रहते कि शैतान निकल निकल निकल. You sickness, get out of my body in Jesus' name. बीमारी निकल यीशु के नाम से हम In चिल्लाते that हैं. anger, we try to see that अगर मैं जोर से चिल्लाऊंगा ना, अब भी निकलेगी. तो हम ऐसा सोच चुका है जितना जोर से चिल्लाएंगे ना उतना जल्दी भाग जाएगा वो. See, even if you take the biggest and the best mic and the best speakers, and still if you keep on shouting, it may not go. और ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा स्पीकर लिया, उस पे जाके भी शैतान को आज्ञा दी कि निकल, तो शायद फिर भी नहीं होगा. Because it's not the voice, your screaming, your shouting will make that sickness go away. क्योंकि आपकी जो आवाज है वो ज्यादा होने से बीमारी नहीं भागने वाली. It's just the faith that you have. तो ये आपका जो विश्वास है ना उससे बीमारी भागती है. Even if you say, you sickness, leave in Jesus' name. How dare you to come in my body? अगर आप सिर्फ ऐसा भी कहते हो कि बीमारी मेरे शरीर से निकल, तेरी हिम्मत किसी हुई यहाँ पे आने की, That's it. उतना कहना भी काफी है. When your faith is built up, it is strong. जब आपका विश्वास बढ़ता है वो मजबूत होता है. You just, even your murmuring, the sickness will have to leave in Jesus' name. तो ऐसे विश्वास के साथ अगर आप थोड़े से छोटे से आवाज में भी बात करोगे ना तो भी बीमारी भाग जाएगी. Because it's not your voice that is going to get rid of that sickness, but the faith in Christ Jesus, the completed, the finished work of Christ is going to achieve that thing. तो ये आपकी आवाज नहीं है जो बीमारी को भगाती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के परिपूर्ण कार्य में जो आपका विश्वास है उसके द्वारा जब आप बात करते हो तो बीमारी भागती है. Amen. Amen. Now this, after practice I came home.
जब प्रैक्टिस करके मैं घर आया and suddenly I started going to washroom multiple times. तो घर आके मैं देखा मैं वॉशरूम मुझे बार बार जाना पड़ रहा है. After I think from afternoon till late night I went to washroom about 8 to 10 times. तो दोपहर से लेकर रात तक मैं 8 से 9 बार वॉशरूम जाना पड़ा मुझे. And I had this thought that morning I have to play octopad in the choir. और सुबह मैं सोच रहा हूँ सुबह के बारे में कि अरे कल तो ऑक्टोपैड बजाना है मुझे. And you see the symbol here. और आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो लगा है दरवाजे पे. So Sunetra, she told me that you have to play the octopad. So why not you just take a simple medicine and at least for tomorrow, so that you will be in a position to play the octopad. तो सुनेत्रा ने कहा कि आपको कल ऑक्टोपैड बजाना है तो एक काम करो एक गोली ले लो सिर्फ कल के लिए तो आप बजा पाओगे अच्छे से. Because she knows that I do not take medicines very easily. तो क्योंकि उसे पता है मैं बहुत आसानी से दवाई नहीं खाता हूँ. I have given 3 days of SLA to the sickness. मैंने बीमारी को 3 दिन का ऐसे दिया है कि 3 दिन तक उसको मैं डील करता हूँ उसके साथ. 3 days, within 3 days it has to go, and it goes. I have seen it happening in my life multiple times. और 3 दिन में मैंने देखा है कि वो भाग जाता है वो चला जाता है. Sometimes like I shared, within few hours it left, sometime overnight it left, but within 3 days I have seen it goes and it goes away. तो मैंने देखा है कि कुछ समय ऐसा भी होता है कि कुछ घंटों में चला जाता है, कभी कभी पूरी रात चली जाती है फिर चला जाता है, लेकिन वो पक्का जाता है. But because that day I had to play octopad, लेकिन उस दिन ऐसा था कि अरे ऑक्टोपैड बजाना है मुझे. so I took the medicine. तो मैंने दवाई ली. I thought, okay, at least I should be in a position to play the octopad. तो मुझे लगा कि अरे चलो ठीक है अभी मैं अच्छे से बजा पाऊंगा. But opposite happened. तो लेकिन उसका उल्टा हुआ. Since morning from till 9 a.m. I went to washroom 6 times. तो सुबह से लेके 9 बजे तक मैं 6 बार वॉशरूम गया. रविवार राइट Sunday morning. सुबह को 9:30, 9:45 we leave from home to come to the church. 9:30 बजे हम घर से निकलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं 6 बार जाके आ चुका था. So there was a thought lingering in my mind that okay, the medicine didn't work, it did not stop. So how will I play the octopad? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अरे दवाई तो काम नहीं करी तो अभी मैं ऑक्टोपैड कैसे बजाऊंगा. So I was just washing my face there, तो मैं मेरा मुंह धो रहा था. and that moment I said, तो उस समय मैंने कहा I am going to play the octopad, मैं ऑक्टोपैड बजाने वाला हूँ and you will not come again. और वापस अभी ऐसा नहीं होगा. You without any medicine, I am telling you, okay. तो मैं बिना दवाई के मैं सिर्फ मेरे शरीर से बात कर रहा हूँ. I just told my body, that sickness, that you will not come again, and I will play without any medicine throughout smoothly. और मैंने मेरे शरीर से कहा कि मैं बिना किसी दवाई के बिल्कुल अच्छे से ऑक्टोपैड बजाऊंगा और मुझे ये बीमारी नहीं आएगी वापस. And you won't believe, और आप विश्वास नहीं करोगे since then, तब से लेके this is the 3rd Sunday, आज तीसरा रविवार है automatically it has stopped. और वो रुक चुका है. What is this? ये क्या है? You just need to apply the faith. तो यहाँ पे हमें सिर्फ हमारा विश्वास को कार्य में लाना I है. did not scream. मैंने चिल्लाया नहीं उसके ऊपर I was just washing my face. और मैं मुंह धो रहा था. I just said to my body, you have to obey. तो मैंने मेरे शरीर से कहा तुझे आज्ञा माननी है. Because it is not I am saying this, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, because Christ has already achieved this. क्योंकि मसीह ने पहले से ही कर दिया है. And now you have to obey what I am saying. और अब तुझे मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनना है. So this is what, when we are in clutch situation, what we speak shows what is your faith. तो ये बात वो है कि जब ऐसे परिस्थिति में हम क्या बोलते हैं इससे दिखता है कि हमारा विश्वास कैसा है. This is just a small example of how we have to fight our faith battle. तो ये सिर्फ मैं उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कैसे लड़ना है विश्वास से हमारी लड़ाई. Okay, we'll go to 1 Timothy हम जाएंगे पहला तिमोथी में. chapter 6. पहला तिमोथियुस 6 अध्याय. It's chapter 6 verse 12. 12 वचन. Fight the good fight of faith. ये वचन कहता है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ Lay hold of eternal life, to which you were also called. और उस अनंत जीवन को धर ले. So the first part it says, fight the good fight of faith. तो पहला भाग ऐसे कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. Fight the fight of faith. तो ये कह रहा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, लड़ाई लड़. If you have to fight with someone, whom will you fight? तो अगर आपको किससे लड़ना है तो आप किससे लड़ोगे?
there must be some enemy with whom you will fight, right? कोई शत्रु होगा, उससे ही आप लड़ोगे. When two countries fight war against each other, जब दो देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं युद्ध में, they consider each other as the enemies, right? तो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं और तब लड़ते हैं. And same way, when we are fighting the good fight of faith, so the fight of faith should have an enemy. तो इसलिए जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ रही है तो ऐसी लड़ाई में एक शत्रु का होना भी जरूरी है. So we see many a times that when we are fighting the fight of faith, we do not see our faith working. तो जब हम विश्वास की लड़ाई लड़ते तो हमें दिखता है कि अरे हमारा विश्वास काम नहीं कर रहा है. Because many a times we are not aware about the enemy that we have against, which is coming against our faith. क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है कि हमें विश्वास लेके कौन से शत्रु के खिलाफ लड़ना है. See, in Ephesians 6, when it talks about the armor of God, तो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में जो कहता है कि प्रभु का जो कवच है उसके बारे में, so it talks about shield of faith. तो उसमें जो विश्वास की ढाल है उसके बारे में बताया गया है. That the faith shield is going to stop the arrows coming from the enemy. तो ये जो विश्वास की ढाल है वो शत्रु के जो तीर आते हैं उसको रोकता है. So what are those the arrows which are going to come against us? What are those enemies which against which we have to fight the fight of faith? तो ये जो तीर आते हैं ये कौन से तीर है, कौन से हमारा दुश्मन है जो हमारे खिलाफ आ रहा है. And that's what we are going to look briefly, तो हम वो देखने वाले हैं. because I have about 15-16 points with me, okay? तो मेरे पास 15-16 भाग है, But I think it's just about the time, so I'll just give you few points which are not common, okay? तो कुछ बातें मैं बताऊंगा जो काफी ये आम नहीं है. Because if I ask you the question, what do you think, what is the enemy of faith? तो अगर मैं आपको पूछूंगा सवाल कि विश्वास का शत्रु कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? What will be your answer? Unbelief, correct? अविश्वास. Avishwas. You know about unbelief, right? So on certain things there are certain answers who are the enemies of faith, which are quite common. So those things I am not sharing, I'll just named it out, and certain things which really need some attention, which we may have not got till yet. So we will focus on those points, okay? तो कुछ ऐसे भाग है जो हमें पता है पहले से, तो उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमें पता नहीं है लेकिन पता होनी चाहिए, तो उन बातों पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे. Because the time is very limited, I have 15-16 points, so I don't want to cover everything and rush. क्योंकि हमारे पास समय कम है और बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता. So first is the doubt or unbelief, as you said. तो पहला जो है वो आपने कह दिया, अविश्वास. Second is ignorance of the word of God. दूसरा जो है वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान न होना, Or lack of knowledge of the word of God. कि परमेश्वर के वचन की कमी होना. Because in Hosea it says that my people are destroyed because of lack of knowledge. तो होशे में हम पढ़ते हैं 4 अध्याय 6 वचन में कि मेरे लोगों का नाश हो रहा है. परमेश्वर कहता है कि वचन की ज्ञान की कमी के कारण उनका नाश हो रहा है. So if you do not have the knowledge that what faith can give you, whatever enemy is coming against you, you won't know what that enemy is. तो अगर आपको पता ही नहीं है कि परमेश्वर के वचन से आपको क्या मिल रहा है, तो आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो किस बात के खिलाफ लड़ रहा है. If you do not know that God has given you joy unspeakable, full of glory, and you do not know, you do not have the knowledge about this word of God, and you are just sorrowful all the times. तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपको पता नहीं है कि परमेश्वर ने आपको उसके आनंद से भर दिया है, वो आपका आशीष है, आपके पास उसने दिया है, लेकिन आप खुद को देखते हो कि आप बहुत बार नहीं एकदम से दुखी हो, बोर हो चुके हो, परेशान हो. Even if you go to stand-up comedian act, अगर आप किसी स्टैंड अप कॉमेडी को देखते हो, there also you are sitting. क्या बोल रहा है ये? तो वहां पे भी लोग ऐसे बैठ के सोचते देखते कि अरे क्या बोल रहे हैं. Why? Because you do not know the joy of the Lord should be your strength. God has given you the joy unspeakable. क्योंकि प्रभु ने आपको एक ऐसा आनंद दिया है जो शब्दों में नहीं बता सकते आप. So the lack of knowledge is the one of the enemies of faith. तो इसका मतलब जो आनंद की कमी होना ये भी विश्वास का ही शत्रु है. And how can we get rid of this? तो ये इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? Romans chapter 10 verse 17, और रोमियो का 10वां अध्याय 17वां वचन which says, जो कहता है faith comes by hearing and hearing by the word of God. कि विश्वास सुनने से और सुनना
मसीह के वचन से आता है। So this lack of knowledge you can overcome when you continue on listening, hearing and hearing the word of God. तो परमेश्वर की वचन की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हो कि आप प्रभु के वचन को सुनते रहते हो। You just keep on hearing, and it says twice, hearing and hearing through the word of God, by the word of God. तो ये दो बातें कह रहे हैं यहाँ पे, पहला कि विश्वास सुनने से आता है, और वो कहता है सुनना जो है वो मसीह के वचन से आता है। In Revelation it says, who has an ear, let them hear. कि प्रकाशित वाक्य में कहता है कि जिसके कान है वो सुने। So what ear? So it is saying an ear, not ears. Okay, there is a difference. तो वो ऐसा कह रहे हैं, वो एक ही कान के बारे में बात कर रहा है, वो नहीं कह रहा है जो हमारे दो कान है उनके बारे में बात नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जिसका कान है वो सुने। So now also when you are hearing me sharing about faith, तो अभी भी आप मुझे सुन रहे हो, मैं विश्वास के बारे में बता रहा हूँ। these 2 ears might be getting it and might be rejecting it. तो आपके ये जो दो कान है उनको वो मेरे वचन को शायद सुन रहे हैं या उसका नकार भी कर रहे होंगे। But when you start hearing from the internal ear, which is singular, लेकिन जब आप अपने अंदरूनी कान से सुनने लगते हो जो एक ही है और जो आपके आत्मा का कान है, उससे आप जब सुनते हो, and that's where your faith starts growing. तब जाके आपका विश्वास It's बढ़ने not लगेगा। about this year. This year you can just put on some word of God, some teaching. You can roam about anything, and after 2 hours of listening, if I ask you something, what did you learn? You might not be able to tell me a single thing. तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके कान में अगर आपने हेडफोन लगाया और प्रभु का वचन सुनते हुए जा रहे हो कहीं पे 2 घंटे हो गए, उसके बाद आपको अगर मैंने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ याद ही नहीं हो, कुछ पता ही नहीं हो। Because your physical ear, they just had the earphone, but your spiritual ear, that was not ready to hear what the word of God is saying. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका ये कान है, ये तो सुन रहा है, लेकिन जो अंदर आत्मा से सुनना जो होता है वो बंद है। And what devil tries to do? और शैतान क्या करता है? See, once we know that a devil will, he will take away the seed which was sown, and people were not able to understand that seed. और शैतान क्या करता है? जो वचन का बीज जो है वो हमारे दिल में जाता है, उससे वो चुरा के लेके जाता है। And the second is, it's mentioned in Mark chapter 4 verses 12. और दूसरा जो है वो बताया गया है मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 4 verses 12. 12 वचन। Here Jesus is saying, यहाँ पे यीशु कह रहा है, Jesus is talking about parables, why he is giving parables to his disciples. तो वो दृष्टांत में बात कर रहा है। So he says in verse 12, so that seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. और यहाँ पे यीशु कह रहा है इसलिए कि वे देखते हुए देखे और उन्हें दिखाई न पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे। So unless you are just hearing from your outside the physical ears, but if your internal ear is not able to hear, not able to understand, that word the devil is going to snatch it from you very easily. इसका मतलब अगर आप सिर्फ कान से सुन रहे हो लेकिन आप अंदर से आपको आत्मा से सुनाई नहीं दे रहा है, वहां से आप नहीं सुन रहे हो, तो ये जो वचन है वो शैतान चुरा के ले जाएगा। It's very easy for him because the word says he came and he snatched that seed, and that seed which the person received but did not understand what that seed was. क्योंकि इस दृष्टांत में यीशु बताते हैं कि ये जो बीज है वो एक जमीन पे गिरा था, लेकिन क्योंकि उसे वो समझा नहीं, इसलिए वो बीज पंछी उठा के लेके गया, मतलब शैतान चुरा के ले गया। That's why I said that even if you have your headphones for 5 hours, you're just continuously listening to the word of God through your external ears, but your mind, your internal ears are not tuned to receive the word. After even 5 hours, you won't be able to say a single thing. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 5 घंटे तक भी किसी प्रभु के सेवक का वचन सुन रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका जो अंदरूनी सुनना है, जो आत्मा से सुनना होता है, वो बंद है, लेकिन ये कान चालू है, तो 5 घंटे भी अगर आप वचन सुनोगे तो भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। That will be just a waste of time for you because you did not receive anything. क्योंकि आपके लिए समय की बर्बादी होगा, क्योंकि आपने कुछ पाया ही नहीं इतना घंटे सुनने के बाद भी। That's why you need to hear from your internal ears that God has given.
इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदरूनी जो सुनना है उसके द्वारा सुनना बहुत जरूरी है। And when you continue, keep on hearing through that ear, your faith automatically grows. और जब आप उसके द्वारा सुनते हो तब जाके आपका विश्वास बढ़ने लगता है। Amen. आमीन। One statement that I want to make is एक वाक्य में बताना चाहूंगा here to understand the word. कि हमें परमेश्वर का वचन इसलिए सुनना है ताकि हमें उसे समझना है। Not because I am used to put something in my ear. Earlier I used to listen to worldly music. Later on I started listening to godly music. Now I am habituated to the teachings. That's not the way. Just for the sake of listening, you should not hear. कि पहले जब मैं सेक्युलर म्यूजिक सुनता था, दुनिया के गाने सुनता था, अभी मैं परमेश्वर के गाने ही सुनता हूँ, तो मुझे सुनने की आदत है। लेकिन ये सिर्फ सुनने के लिए सुनना आदत है, इसलिए परमेश्वर का वचन सुनना, इससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। But here to understand the word, that will be profitable for you. लेकिन अगर हम इसलिए सुन रहे हैं कि मुझे समझना है, मुझे जानना है, तब जाके हमें इससे लाभ होगा। Amen. आमीन। Now next point. अगला मुद्दा लेंगे, It's about fear. ये डर के बारे में है। So fear, we know that it is one of the enemies of faith. कि जो डर है वो भी विश्वास का शत्रु है। How? कैसे? We know when Peter walked on the water. कि हमें पता है कि जो पतरस है वो पानी पे चला। So here also, if we just remember what all happened there in that incident, okay? अगर आप उस बात को याद करते हैं जब पतरस पानी पे चला था, So just now we read the faith comes by hearing and hearing by the word. तो हमने अभी देखा कि विश्वास जो है वो सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। Now here when Jesus was walking on the water, कि यहाँ पे जब यीशु पानी पे चल रहे थे, Peter said, Lord, is that you? कि पतरस ने पूछा कि प्रभु क्या ये तू है? If so, call me, I'll come to you. कि तब पतरस कहते कि प्रभु अगर तू है तो मुझे बुला और मैं आऊंगा। And Jesus said, come. और यीशु कहता है कि आ। So now the word Peter heard from Jesus was come. तो पतरस ने यीशु का वचन सुना कि आ। Now hearing this word, his faith grew. तो जब उसने ये वचन सुना तो उसका विश्वास बढ़ा। And that's why he started walking on the water. इसीलिए तब वो पानी पे कदम डाल के चल पाया। Okay, so see, here the word itself is fulfilling the word. Okay, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वचन जो है वही वचन पूरा कर रहा है। we read in Romans that faith comes by hearing and hearing by the word of God. हम रोमियो के पुस्तक में देखते हैं कि सुनना वचन से और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। Now here Peter's faith, it grew, it came because he heard the word of God, which was Jesus himself said, come. तो यहाँ पे पतरस का विश्वास इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने सुना कि यीशु कह रहे कि आ। And now he acted out. और उस पे उसने एक्शन लिया, उससे उसमें कार्य में लाया। And he started walking on the water. और वो पानी पे चलने लगा। And suddenly he saw all the storm around him. और तब उसने अचानक से देखा कि उसके आजू बाजू जो तूफान है वो बहुत बढ़ गया। And fear came in him. तब उसमें भय आया, डर आया। And that's when he started sinking. और तब वो डूबने लगा। So his faith was shaken by the fear that he saw around or the situation around him. और तब उसका जो विश्वास था वो डगमगाया जब उसने उस तूफान को देखा। So here we see, here the fear is enemy of faith. तब उसने देखा, तब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विश्वास जो डर है वो विश्वास का शत्रु है। Fear is the enemy of faith. जो डर है वो विश्वास का शत्रु है। So what is the solution for this? तो इसका उपाय क्या है? God said, God has not given us the spirit of fear, कि प्रभु का वचन कहता है कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, but of power, of sound mind and of love. लेकिन उसने हमें प्यार, संयम और Samadka. या सामर्थ का आत्मा दिया है। He has given us the power of, He has given us the spirit of power within us. So we need not fear. तो उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है ताकि हम ना डरे। See, I'm not going in deep for fear because we already know all these things. Okay. तो मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा इसके बारे में क्योंकि हमें इसके बारे में पता है। Because the next 2 points which I want you all to focus on. तो अगले जो 2 मुद्दे हैं उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है।
Because in most, as I told, most of the points we already know, but 3 points which I really want you to focus. First was the ignorance of the word of God or lack of knowledge of God. तो यहाँ पे 3 बातें हैं जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देनी है। तो पहला बात उसमें से ये है कि प्रभु के वचन के ज्ञान की कमी होना। And the next is weak conscience. तो दूसरा जो है वो होता है कमज़ोर विवेक। Okay, we'll go to 1 Timothy. तो हम जाएंगे पहले तिमोथी में। 1 Timothy chapter 1 verses 18 and 19. पहला तिमोथी का पहला अध्याय वचन 18-19। So it says, "This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare, having faith and a good conscience, which some having rejected concerning the faith have suffered shipwreck." और ये वचन कहते हैं 18 और 19 ये कहता है, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। So it says that the faith was shipwrecked because their conscience was taken away from them. तो यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो विश्वास रूपी जहाज है वो क्यों डूबा, क्योंकि उसका अच्छे विवेक नहीं था उनके पास। So here we see that faith and conscience are working together. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्वास और अच्छा विवेक ये जो दोनों बातें एक साथ काम कर रहे हैं। But if your conscience is not in line with your faith, लेकिन अगर आपका जो विवेक है वो विश्वास के साथ एक नहीं हो रहा है, your faith will not work. तो आपका विश्वास ही काम नहीं करेगा। It will be shipwrecked. तो आपका विश्वास जो है वो जहाज जैसा डूब जाएगा। I am not saying this. See word, we just read it in 19 verse. Okay. The word is saying if your conscience is not aligned with your faith, your conscience is detached from your faith will be shipwrecked. तो ये कह रहा है कि अगर आपका विश्वास जो है वो आपके विवेक से अगर अलग हो गया तो आपका जो विश्वास है वो काम नहीं करेगा, आपका जो जहाज है वो डूब जाएगा। So sometimes you are just operating through your conscience, not through your faith, and that's where you take wrong decisions. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ हमारे खुद के दिमाग से चलते हैं, खुद के विवेक से चलते हैं, विश्वास से नहीं चलते, तब जाके ऐसा होता है। So for example, if we take an example of Abraham, हम अब्राहम का उदाहरण लेते हैं। so when God called Abraham to sacrifice his son Isaac, तो अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया और कहा कि तुझे तेरे बेटे को बलिदान करना है। and we know that Abraham took his son on the mountain to sacrifice his son. और हमें पता है कि अब्राहम अपने बेटे को लेके उस पहाड़ पे चला गया, Knowing that God is able to raise him from the dead even after he sacrificed his son. तो अब्राहम का विश्वास इतना बड़ा था, उसे पता था कि अगर मेरा बेटा अगर मर भी जाता है तो परमेश्वर उसे पुनर्जीवित कर सकता है। Do you think that moment his conscience was aligned with him or not? तो क्या आपको क्या लगता है, क्या उसका विवेक जो है वो उसके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था तब? His conscience, if we would have been in that position, it would have been constantly saying that you are sacrificing your only son. Why there is need to sacrifice? Is it really a God who is asking you to sacrifice your son? तो अगर ऐसा अब्राहम की जगह पे अगर हम होते तो हम ऐसा सोच सकते थे कि अरे क्या ये सही है, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है, ये कैसा परमेश्वर है जो बेटे को ही बलिदान करने को कह रहा है? तो हमारा विश्वास और विवेक साथ में नहीं होते थे। If that would have been condition of Abraham, his faith would have shipwrecked there and there itself because his faith was not aligned with his conscience. तो ऐसा अगर अब्राहम भी सोचता था तो उसका विश्वास भी उधर काम नहीं करता था, उसका विश्वास उधर ही डूब जाता था। But his conscience was in line with his faith. That's how he was able. God stopped him from sacrificing his son. तो उसका जो विवेक था वो उसके विश्वास के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका विश्वास काम करा। So what is that conscience? तो ये विवेक क्या होता है? Do you know why? I think in Hebrews chapter 9 it says that why not the blood of Jesus will clean your conscience through dead works. तो इब्रानियों का पुस्तक में 9वें अध्याय में कहता है कि ये मसीह का जो लहू है वो हमारे विवेक को शुद्ध करता है मरे हुए कामों से। Why we need
our conscience to be clean from dead works. Why the blood of Jesus is required to clean our conscience? क्यों ये जरूरी क्यों है कि मसीह का लहू हमारे विवेक को शुद्ध करे मरे हुए कामों से? ये क्यों जरूरी है? See, when God made Adam and Eve, जब परमेश्वर आदम और हवा से मिले, when He created them, जब परमेश्वर ने उन्हें तैयार किया and God gave them everything on this earth, और परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दे दिया जो भी उस धरती पे है, and God told them that you can eat from anything except this tree of knowledge of good and evil. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम लोग इस धरती में से कोई भी फल को खा सकते हो, लेकिन सिर्फ ये एक ही पेड़ है जिसका फल तुम नहीं खा सकते। Why God said this? परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? Because the whole knowledge about God was already deposited in them. क्योंकि परमेश्वर के बारे में जो भी ज्ञान था वो उनके अंदर पहले से ही डाल दिया गया था। But the knowledge which was not required would be given by that tree of good of knowledge of good and evil. लेकिन कुछ ऐसा ज्ञान था जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी, वो ज्ञान था अच्छे और बुरे का ज्ञान, वो उस पेड़ में था, वो उस फल में था। Why I am saying this? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? Word says God created Adam and Eve in His own image. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया। If God made them in their image, that means everything that God had, they also had. अगर परमेश्वर ने उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, इसका मतलब उन परमेश्वर के अंदर जो है वो सब उनके अंदर भी था। So what everything required for them to live on this earth might be eternal life. Eternally, if they would have not sinned, they would have lived there. Without that knowledge, it was sufficient for them. अगर तो उनके अंदर जो अनंत जीवन जो था वो उनके अंदर ही था, तो अगर वो पाप नहीं करते तो उस अनंत जीवन के द्वारा वो हमेशा जीवित रहते। They did not require that knowledge, but when they ate from that tree of knowledge of good and evil, लेकिन जब उन्होंने उस भले बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ का फल खाया, suddenly their conscience awakened तब जाके उनका जो विवेक था वो जीवित हो गया towards things which God did not want to be awakened. तो उनका जो विवेक था वो जाग गया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। That's why when they sinned, the first thing that they did was they tried to cover themselves. तो उसका परिणाम ये हुआ कि जब उन्होंने पाप किया तो पहला उनका जो प्रतिक्रिया था उसके लिए डर का, वो ये था कि उन्होंने खुद को ढक लिया। Because their conscience was constantly condemning them that you did something wrong, you did something wrong, you did something wrong, you did something तो wrong. उनका जो विवेक था उसने उनको दंडित करना शुरू किया अंदर से कि तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। When God came to meet them at their regular meeting time, जब परमेश्वर उनसे मिलने आते हैं शाम को, God just called him, Adam, Adam, where are you? तो परमेश्वर ने आदम को बुलाया कि आदम, आदम तू कहाँ है? And they hid themselves. और वचन कहते हैं कि वो छुप गए, परमेश्वर से छुप गए। Why? Because their conscience was awakened towards the things of the world, the things of the devil, and that conscience was constantly condemning that you are not worthy of God, you are not worthy of God, you are not worthy of God. क्योंकि उनका जो विवेक था वो जाग चुका था और वो उनको दंडित करने लग गया था कि तुम परमेश्वर के लायक नहीं हो, तुम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, तुम्हें जाके छुपना होगा। And that's why they hid themselves. इसलिए वो जाके छुप गए। And this conscience we carried forward from Adam till now, even till generations, till Jesus would come on this earth. और यही जो विवेक है वो आदम से चलते हुए आज हमारे अंदर भी आ चुका है। That's why even some unbelievers, when they commit some sin, internally they get voice, you are not worthy, you are not worthy, you are not worthy, you are not worthy. इसीलिए जो भी अविश्वासी लोग भी है, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके अंदर से भी उनको आवाज आती है कि तूने गलत किया है, ये सही नहीं है। Because Romans chapter 1 it says that God has put the conscience in everyone and everyone knows that what is good and what is not good. तो रोमियो का पहला अध्याय जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सृष्टि में हर मनुष्य के अंदर एक विवेक डाल दिया गया है जो उन्हें बताता है कि परमेश्वर है और तुम गलत कर रहे हो। And this conscience was awakened by when they got the knowledge which is not related to God, but apart from God, the knowledge that they got awakened their conscience to wrong things.
और ये जो विवेक है ये तब जागा था जब उन्होंने उस फल खाया था, और वो फल खाने से उनका वो विवेक जाग गया ताकि वो उन चीजों के बारे में ज्यादा सचेत हो गए जो परमेश्वर नहीं चाहते थे कि वो हो। Okay, I'll give you the Bible reference for this. Okay, एक इसका वचन हम देखेंगे, 1 Timothy chapter 6, पहला तिमोथी का 6 अध्याय verse 20. 20 वचन। O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradiction of what is falsely called knowledge. हे तिमोथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर जो तुझे दी गई है, और मूर्ख बातों से और विरोध के तर्क जो झूठा ज्ञान कहलाता है दूर रहे। The knowledge which is not from God is false knowledge, and that awakens our conscience towards wrong things. ऐसा ज्ञान जो प्रभु से नहीं है वो हमारे विवेक को जीवित करता है, और वो हमें वो झूठा ज्ञान कहलाता है। And that conscience does not align with the faith. When we have faith for certain things, that conscience does not allow to be aligned. और यही विवेक जो होता है, जो जाग चुका है, ये हमें विश्वास में चलने से रोकता है, And that's when your faith will not work, और इसी कारण हमारा विश्वास काम नहीं करेगा, because your conscience is not aligned with your faith. क्योंकि आपका जो विवेक है वो विश्वास के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। So what is conscience? तो विवेक क्या है? It is the place, it is the voice of your spirit to our physical body, to our soul. तो ये जो विवेक है ये हमारे प्राण का आवाज है हमारी आत्मा की तरफ। The voice of our spirit towards our soul and towards our physical body, तो ये जो है ये हमारी आत्मा का आवाज है हमारे प्राण और हमारे शरीर की ओर, which constantly tells us if we go wrong, so it will start condemning you. If you do right, it will try to puff you up. तो ये ऐसी आवाज है जो अगर आप गलत करोगे तो आपको दंडित करना शुरू करेगा, और अगर आप सही करोगे तो आपको घमंड की ओर लेके जाएगा। And that's why Hebrews 9 says that this conscience needed to be cleansed because it had the dead works since Adam. Wrong things, those were deposited in this conscience, needed to be cleaned. इसीलिए वचन कहता है कि ये जो विवेक है इसकी शुद्धि होना जरूरी है मसीह के लहू के द्वारा, जो पहले से मरे हुए कामों में हमें चला रहा था। And how we can be sensitive to Holy Spirit through our conscience? और हम हमारे विवेक के द्वारा पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील कैसे हो सकते हैं? By spending more and more time with Holy Spirit. तो ये तब होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा समय पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बिताएंगे। As I said, your conscience is the voice of your spirit to your body and your soul. तो आपका जो विवेक है वो आपके खुद के आत्मा की आवाज है आपके शरीर और आपके प्राण की तरफ। And when you are born again, your spirit has become one with the Holy Spirit. और जब आपका नया जन्म होता है तो आपकी आत्मा जो है वो पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाती है। And when your spirit has become one with the Holy Spirit, so how will you hear the voice unless you have clean conscience? और अगर आपका और पवित्र आत्मा एक हो गए हैं तो आप उसकी आवाज कैसे सुन पाओगे अगर आपका विवेक जो है वो शुद्ध नहीं हुआ है। And once we start spending more time with the Holy Spirit, our conscience becomes sensitive to the Holy Spirit, and automatically it aligns with the faith that we have for something. और जब हम ज्यादा समय बिताने लगते हैं पवित्र आत्मा के साथ तो हमारा जो विवेक है वो विश्वास के साथ जुड़ जाता है, और इसके द्वारा हम पवित्र आत्मा को सुन पाते हैं। And the promptings of the Holy Spirit we can receive in our conscience because it's a voice of our spirit. और तब जाके हम हमारे विवेक में पवित्र आत्मा की आवाज जो है उसकी जो अगुवाई है उसे हम समझने लगते हैं। Amen. आमीन। And now we will just take last point very quickly. और हम आखिरी मुद्दा लेंगे अब, And it's about substituting your hope for faith. और ये है हमारी जो आशा है उसको विश्वास को आशा से replace कर. हाँ, विश्वास जो है उसको हम आशा से बदल देते हैं। Okay, I'll ask you one question. Okay. मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। Do you know? So you are coming regularly to church. So I just want to ask you: is there any promise in the Bible where it says that God promises you about your healing? Is there any promise? मैं आपको सवाल पूछना चाहूँगा कि बाइबल में ऐसा कोई वचन है जो परमेश्वर ने आपसे कहा है कि वो आपको
चंगाई देगा, ऐसा कोई वचन है बाइबल में? वायदा, परमेश्वर ने कोई वायदा किया कि परमेश्वर का परमेश्वर वादा आपको है? चंगा करने वाला है? You were healed, right? यस। Correct? There is no promise from God for your healing. तो परमेश्वर से ऐसा कोई वादा नहीं है बाइबल में जो कह रहा है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, Because promise is going to happen at certain time in future. क्योंकि वादा ऐसी चीज होती है जो एक समय पे जाके पूरा होगा। But the healing God has already provided. लेकिन जो चंगाई है वो परमेश्वर ने पहले से ही दे दी है। There is no promise for your healing. It's already there for you. It's already in place. तो आपकी चंगाई के लिए परमेश्वर ने कोई वादा नहीं दिया है, क्योंकि वो वादा उसने पहले ही पूरा कर दिया है। So that's why if someone tells you, even sometimes when we are just praying that, Lord, you have promised me to heal me, Lord, you have promised me to heal me, that prayer is not going to be answered. I'm giving you in return that prayer is not going to get answered. और अगर कोई ऐसा वादा कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु तूने कहा है तू चंगा करेगा, तू चंगा करेगा, तो वो प्रार्थना का आंसर उत्तर नहीं आने वाला है। Because that promise, God, that is not the promise. God has already done it through Jesus Christ. That healing is already being provided for you. क्योंकि वो ऐसा वादा नहीं है कि परमेश्वर कभी एक समय पे जाके वो करने वाला है, लेकिन वो ये वादा है, ये वचन है कि मैंने वो मसीह के द्वारा पहले ही कर दिया है। Similarly, for every blessing that we are waiting for God, that Lord, you are going to provide, Lord, this is the promise that you have given, it's already being provided for you. Already, it's already there deposited in your spirit. इसी तरह से अगर कोई वादा जिसके ऊपर हम अगर प्रार्थना करें कि प्रभु तूने कहा है तू ये करेगा, तू ये देगा, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह के अंदर हर एक वादा पहले से ही पूरा कर दिया है। So I need not wait that it is going to happen. तो मैं इंतजार नहीं कर सकता कि अरे कब जाके होगा ये। And similarly, if I cannot rely on the promises that for certain things God has already provided, I can rely on the promise. तो अगर कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने पहले से ही दे दी है, तो हम परमेश्वर उसके ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते, Because you have to just take it. It's already there for you. क्योंकि हमें उस पर निर्भर रहने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें जाके सिर्फ उसे लेना है। Similar case is for hope. इसी प्रकार से आशा के बारे में बताया गया है। So Mark 11:24. तो मरकुस 11:24 में लिखा है, We'll just open it. Mark 11:24. हम वहां जाएंगे, मरकुस 11वां अध्याय 24 वचन। So it says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. यहाँ पे यीशु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। Does it say hope that you receive them and you will have them? Is it saying like this? तो क्या यह वचन ऐसा कहता है कि तुम आशा करो कि तुम्हें मिलेगा और तब मिल जाएगा, Or is it saying believe you will have and then you will have it? या फिर यह ऐसा कहता है कि तुम विश्वास करो और तुम पा लोगे। See, hope is about something that you are going to get in future. आशा का मतलब वो होता है कि आप किसी बात के बारे में आशा कर रहे हो कि भविष्य में आपको वो मिलेगा। Like I am saying that I hope that God is going to heal me. या फिर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि प्रभु मुझे चंगा करे। I hope that God is going to bless me with a good job. I hope that God is going to bless me with a new house. तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आशा करता हूँ कि प्रभु मुझे अच्छी नौकरी दे, मैं आशा करता हूँ कि प्रभु मुझे एक अच्छा घर दे। Can I tell you one thing? क्या मैं आपको एक बात बता सकता हूँ This hope you are not going to get answered. कि ऐसी आशा से आपको कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला, Because the word says, now the faith is the substance of hope. क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास जो है वो आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। It's the substance of hope is your faith. कि आशा की हुई वस्तुओं का जो प्रमाण जो होता है वो विश्वास है। And it starts with now faith is. और ये वचन कहते हैं कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का प्रमाण है। So it's not about faith, it's not about hope, but your faith should be now. Now I have it in the name of Jesus because He has already provided it for me. तो आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि अब मुझे विश्वास है और मुझे ये प्रभु ने दे दिया है। It's not about hope that in future it's going to happen. Now God has given me, even if I am not able to see it, but my evidence, my faith is that it's there for me right now.
तो आशा करने का मतलब ये होता है कि मैं आशा कर रहा हूँ कि भविष्य में मुझे वो मिलेगा, लेकिन विश्वास ये होता है कि मुझे वो मिल चुका है और मेरा विश्वास ही उस बात का सबूत है। In James, the word says the prayer of faith is going to heal the sick. और याकूब में लिखा है कि जो विश्वास की प्रार्थना है वो बीमारों को चंगा करेगी। Not the prayer of hope is going to heal the sick. ऐसा नहीं कहा है कि आशा की प्रार्थना बीमारों को चंगा But the करेगी। prayer of faith is going to do things, and faith is now. It's not about future, it's not about hope, it's not about promise, but it says now faith is. और विश्वास की प्रार्थना जो है वो बीमारों को चंगा करेगी, और ये जो विश्वास है वो अभी का विश्वास है। जो भविष्य के लिए विश्वास नहीं कर रहा है वो अभी के लिए विश्वास कर रहा है कि ये हो गया है। So if you listen, I think you might have observed whenever we sing happy birthday song in our church, whenever we are celebrating someone's birthday. आपने ध्यान दिया होगा शायद कभी हम हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं हमारे लोगों के लिए। So outside we will sing happy birthday to you, may God bless you. तो बाहर के लोग जो गाते हैं आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि प्रभु भगवान आपको आशीर्वादित करे। But here we say God has blessed you. लेकिन यहाँ पे हम गाते हैं कि प्रभु ने तुझे आशीर्वादित कर दिया है। It's already been done. My faith says I have it right now in the name of Jesus. कि ये विश्वास है हमारा कि पहले से ये हो चुका है, यीशु के नाम में परमेश्वर ने पहले तुम्हें आशीष कर दिया है। Even if I'm not able to see it right now, but my faith, my evidence says I have right now. Even if my body is not able to accept, but I say by His stripes I am already healed. I am not hoping to get healed, but I am already healed. अगर मेरा परिस्थिति जो अभी कह रहा है कि तेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि नहीं, मैं वो चीज़ पा चुका हूँ। मेरा शरीर अगर कह रहा है कि नहीं मैं बीमार हूँ, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि मैं चंगा हो चुका हूँ। And I want to tell you with all, as a gist of all the things that we have shared today. और मैं आपको सारी बातों का एक सारांश बताना चाहूँगा Your faith is for now. कि आपका विश्वास जो है वो अभी के लिए है। Your faith is present tense. It's not for future, it's not for promise, but it's for today. Today, right now, my faith has to work right now. आपका विश्वास आज के लिए है, अभी के लिए है, अभी आपका विश्वास काम करना चाहिए। Why don't we get up and stand on our feet and just thank God for all the things that He has already given us. Already I have all those things by faith right now. तो हम खड़े होकर अब प्रभु को धन्यवाद देंगे, महिमा देंगे, जो सारी बातें उसने हमारे लिए पहले से ही दे दी है। If you're seeing sickness in your body, see, you need to operate your faith currently, because your faith right now is going to operate for you, work for you. अगर आपके शरीर में आपको चंगाई चाहिए तो उससे आपको अभी के अभी उसे विश्वास को आपके कार्य में लाना पड़ेगा। Your faith right now is going to operate and work in your body for your body. तो आपका जो विश्वास है वो आपके शरीर के लिए अभी काम करेगा। If you are going through certain things, financial difficulties, your faith for now it should say that God has already blessed me with everything, every spiritual blessing. Now I have it in my life in Jesus' name. आपके आर्थिक परिस्थिति के लिए अगर आप किसी चीज की कमी है आपके पास, तो उसके लिए आपको आपके विश्वास को कार्य में लाना होगा। ये कहना होगा कि मुझे सारी बातें मिल चुकी है। I do not rely on my physical senses to experience all these things for all my answers to my questions, but my faith says I have it right now in the name of Jesus. मैं मेरे शरीर पे निर्भर नहीं रहता कि मुझे सारी बातें दिखेगी, मुझे महसूस होगी, तब जाके मैं विश्वास करूंगा कि हाँ मुझे मिल गया है, लेकिन मैं विश्वास करूंगा कि मुझे सारी बातें अभी मिल चुकी है, मेरे पास सब कुछ है यीशु के नाम से। Right now it's yours. अभी ये आपका है यीशु के नाम में। It's not for future, but right now it is yours. Your healing is yours right now. ये भविष्य में नहीं होगा, आपका जो चंगाई है वो आपका है, आपके अंदर है, इसी समय है। Your breakthrough is right now. आपका जो आशीष है वो अभी है। Your joy, your happiness is right now. आपका जो आनंद है वो अभी है। Not after going home, but right now your happiness is there, your joy is there right now available for you. You just need to go and grab it.
आप घर जाके खुश नहीं होंगे, आनंद नहीं पाओगे। आपका आनंद अभी इसी समय मौजूद है, आपको सिर्फ उसे थामना है। Just take few minutes, just declare your faith declaration right now for your life in the name of Jesus, for your sickness, for your breakthroughs right now. Just go on declaring it. कुछ समय के लिए हम सिर्फ घोषणा करेंगे आपके विश्वास के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके प्रार्थना के लिए, जो आप पाना चाहते हो उसके लिए हम विश्वास से घोषणा See, करेंगे। devil may come and show some symptoms in your body, but you have to stand firm and say, devil, my faith says, my God says, I have it right now and I receive it right now in the name of Jesus. शैतान आके आपको दिखाना चाहेगा कि तेरे पास चंगाई नहीं है, तू कमजोर है, बीमार है, लेकिन उसे हमें कहना है कि शैतान, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा उसने कर दिया है, मुझे सारी बातें पहले से ही मिल चुकी है। I am not going to pray for you. You need to exercise your faith right now because your faith is going to work right now for you, for your life in Jesus' name. मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, लेकिन आपको अपने मुख से आपके विश्वास की घोषणा करनी होगी और उससे ही सारी बातें होगी। Amen. Shabarakalaba. Come on, go on declaring about your तो faith. अपना मुख को खोलिए और घोषणा कीजिए, बोलिए, विश्वास में बोलिए। The things that you seem not possible, just declare it that your faith is having those things right now. आपके जीवन में अगर कोई बात आपको असंभव दिख रही तो उसे देख के विश्वास से घोषणा करनी है कि ये हो चुका है यीशु के नाम से। Speak to your mountain, say your mountain right now, you get out in the name of Jesus. अपने उस पहाड़ से बात कीजिए जो आपके मार्ग में खड़ा है कि यीशु के नाम से उखड़ और निकल जा। Right now you have to go right now in the name of Jesus. इसी समय यीशु के नाम से तुझे जाना होगा, Because the word says now the faith is. क्योंकि वचन कहता है कि विश्वास अब है, Now your faith is going to work. कि अब आपका विश्वास काम करेगा। Now it is your time. अभी आपका समय है Just go on declaring, just go on कि आपको speaking to your घोषणा करना है। situations right now. आपकी परिस्थितियों के ऊपर आपको घोषणा करनी है। Your sickness has to go away right now in the name of Jesus. आपकी बीमारी को, आपके दर्द को जाना होगा यीशु के नाम से। Because you're not hoping, you're not waiting on the promise, but you are relying on the finished work of Christ, that because of His stripes you were already healed. आप आशा नहीं कर रहे हो कि आप चंगे हो जाओगे, एक दिन चंगे हो जाओगे, लेकिन आप उस सत्य पे खड़े हो, विश्वास से खड़े हो कि उसके खाए कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूँ। His divine power has given us all things. उसकी सामर्थ से हमें सारी बातें, सारी आशीषें मिल चुकी है। We have got all spiritual blessings in heavenly places through Christ Jesus. सारी आशीषें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के द्वारा हमें मिल चुकी है। It's just not about spiritual, but your material blessings. सिर्फ आत्मिक आशीष नहीं, लेकिन इस दुनिया की आशीष भी हमें मिल चुकी है। Be it about your house, be it about your car, be it about your job, be it about the land for this church, go on declaring that I have it by faith right now in the name of Jesus. आपका घर होगा, आपका जॉब होगा, आपका कार होगा या चर्च के लिए जमीन होगा, सारी बातें आपको घोषणा करनी है कि यीशु के नाम में हमें मिल चुका है। I am not hoping that someone is going to sow a land, but I declare by faith that we are going to have our own land right now in the name of Jesus. मैं इंतजार नहीं करूंगा कि कोई आके जमीन देगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि विश्वास के द्वारा हमें वो जमीन मिल चुकी है। And we declare it, we receive it by faith right now in the name of Jesus. हम विश्वास से उस जमीन को स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। That no one in this church will see death among their family members in the name of Jesus. कि इस कलीसिया का कोई भी परिवार अपने परिवार में किसी की मृत्यु नहीं देखेगा। No parents will bury their children in the name of Jesus right now. I कोई- declare it. कोई भी माता पिता अपने बच्चों को नहीं दफनाएंगे। मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। Everyone related to us, everyone, be it believers or unbelievers, they are going to have long life because the life is flowing from me through to them. हमसे जुड़े हुए सारे विश्वासी अविश्वासी वो लंबा आयु जिएंगे यीशु के नाम से। None of them will be sick, none of them will be in the hospital because the life of God is flowing through me right now to them in the name of Jesus. इनमें से कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मसीह का जीवन उनके अंदर बह रहा है। None of them will go to any financial struggles because the blessings of the Lord is going to make me rich and my riches is going to bless them and it will bring them out of poverty in the name of Jesus. Right now I declare it. कोई भी आर्थिक परिस्थितियों से नहीं जूझेगा, क्योंकि हमारे आशीष के द्वारा परमेश्वर उन्हें भी आशीषित करेगा और वो अपने गरीबी से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम से। Because God has made us blessings to nations. क्योंकि प्रभु ने हमें राष्ट्रों के लिए आशीष बनाया And I है am that blessing right now in the name of Jesus. और मैं वो आशीष हूँ यीशु मसीह के नाम से। Just go on declaring it. Just ये go on हमें declaring घोषणा it. करनी है यीशु के नाम से।
la ra ba 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 ra ba. Bere shekhe tha la ra ba ra ba ba ba. Just go on declaring, just go on declaring. If you don't find words, just speak in tongues. अन्य भाषा में बोलिए. अगर आपको घोषणाएं नहीं करनी आ रही हो तो just अन्य भाषा में बोलते जाइए. रबा 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 शेखे था रबा 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 बारी बारी काला रबा शेखे था सेरी खाला रहा शेखे थे रस्का था खाला रहा शेबे रबा 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 बाबा मामा 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 शेखे था. Speak to the devil, tell the devil, devil, you deceived me by hoping for certain things, by relying on certain things, on certain promises, but my faith, my word says, by faith I have it right now in the name of Jesus. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि सारी बातें विश्वास के द्वारा मेरे पास आ चुकी है यीशु मसीह के नाम से. Devil, you no longer will be able to deceive me. कि शैतान अब तो मुझे धोखा नहीं दे पाएगा. Because I know right now I have everything through faith. Right now it is with me, inside of me, in Jesus name. क्योंकि मैं जानता हूँ विश्वास के द्वारा सारी बातें मेरे अंदर मौजूद है, मुझे मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से. Just keep on declaring it. ये Keep on घोषणा declaring. करते रहिए. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. हमने सारी बातें पा ली है प्रभु यीशु. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम तुझ में ही, मेरी सुबह तुझ में ही, मेरी हर शाम. शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है. मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. सब मिलके गाए. तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा. शुक्रिया 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 तेरा. शुक्रिया 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 तेरा. Let's sing शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया यीशु तेरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु कि आपका विश्वास आपने हमें दिया है, और प्रभु हम इस विश्वास को भी इस्तेमाल करेंगे कि शैतान अभी हमें और धोखे में नहीं रख सकता, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु कि हमारा विश्वास अब से आज के लिए है, और हमारा विश्वास हम वैसे विश्वास का इस्तेमाल वैसे ही करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक छोटा सा टेस्टिमनी है। आज का चिल्ड्रंस संडे स्कूल में होली स्पिरिट वाज प्रेजेंट विथ पावर, एंड आई वांट टू कॉल रायन एंड रेचल ओवर हियर, प्लीज कम। For the first time today, they started speaking in tongues. Amen. So they were filled with the Holy Spirit, and we prayed, we asked them, like, do you want the gift of tongues? They said yes, and they received the gift of tongues. Amen. Amen. So Amen. when Ashish brother was saying, let's pray in tongues, they both were praying in tongues, and I saw that and I was very happy. I also want to call Enoch and Kevin. Come here. So when praise and worship was going on, Enoch had a cough and it was troubling him. So he prayed in faith. He stood and believed for his healing, and his cough disappeared. Okay, and then we got Enoch to pray for Kevin. Kevin experienced Jesus talking to him. So, in fact, I want to call all the KBS children over here. Come. So, yes, come. These are not ordinary children. They are not ordinary children. Tomorrow they are going to pray over others and they are going to get healed. And they are going to be excellent students. So give all glory and praise to God, to Jesus, because they are mighty children in His name. Amen. Thank you very much. हम आखिरी गीत गाएंगे, सब लोग आशीर्वादित हुए। हालेलुया, आमीन। विश्वास बहुत अच्छा से मेरे को भी प्रभु ने बात किया। विश्वास वही बोलता है जो वचन बोलता है, वो बहुत पावरफुल था और प्रभु ने उसके द्वारा मेरे को बहुत एनकरेज किया। हालेलुया। तो अगर हमारे पास विश्वास है या नहीं कैसे समझ में आएगा? हम क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। अगर हम वही बोल रहे हैं जो वचन बोल रहे हैं तो हम विश्वास में बात कर रहे हैं, और ऐसा विश्वास हमारे जीवन में सचमुच काम करेगा और हम सबका जीवन हमेशा के लिए बदलता जाएगा। हालेलुया। हम आखिरी गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा। वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, और एक बार, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लिसिंग समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में मार्ग निकाला। हो समंदर को जिसने दुभागा, जंगल से मार्ग निकाला। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। Let's sing लाजर। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, Amen। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सब के साथ हमेशा रहेगा। और पूरी कलीसिया कहेगी आमीन। एक दूसरे से मिलिए, सहभागिता कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। आमीन।